Good morning, dear family. गुड मॉर्निंग प्रिय परिवार। When Jesus was about to crucify, और जब यीशु मसीह को क्रूसित किया जाना था and before that he was speaking and with his disciples, और जब वो अपने जो डिसाइपल शिष्य उनसे जब वो बात कर रहा था, he knew that after his crucifixion, his disciples will face fear and loneliness and uncertainties. और प्रभु जानता था कि उसकी मृत्यु के बाद जो उसके शिष्य हैं वो उस डर को और जो अकेलापन है उस डर को वो महसूस करेंगे। And he made a powerful promise to his disciples before crucifixion. और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने एक बहुत ही सामर्थी वायदा उनसे किया। And that is found in John chapter 14, verse 18. और वो जो है यूहन्ना 14:18 में पाया जाता Let's है। turn to John 14, verse 18. और आइए हम यूहन्ना 14 का 18 वचन खोलेंगे। It says that I will not leave you as orphans. और वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। This is not just emotional assurance that Jesus wanted to give his disciples. और ये कोई एक भावनात्मक निश्चितता नहीं, अश्योरेंस नहीं जो प्रभु अपने चेलों को देना चाहता था। That Jesus was making one promise to the entire mankind for the very first time. He is giving the assurance of Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह जो है पूरी मानव जाति को एक इस बात का आश्वासन दे रहा था पवित्र आत्मा के विषय में। Jesus wanted to bring all his disciples into his own family. और यीशु मसीह उसके जो शिष्य है उनको एक परिवार में लेकर आना चाहता था। Not just the orphans, but into his family as his son and daughter. और एक अनाथ की तरह नहीं पर एक उसके बेटे और बेटी की तरह उसके परिवार में। If you have ever met any orphan in your life, और अगर आप अपने जीवन में कभी किसी अनाथ से मिले हो, generally an orphan doesn't have father and mother. और जो अनाथ होते हैं उनके माता पिता नहीं होते, They have lost their parents in early childhood, और उनके बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया होता है। and they have very deep insecurity inside of them. They can't easily trust anyone. और उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा असुरक्षा होती है, वो आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। Always they feel that nobody loves me, और हमेशा उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता and है। they fear like I'm been forgotten, I've been rejected by people, और उनको लगता है कि मुझे तो भुला दिया गया है, मुझे तो नकार दिया गया है। and they're trying to earn the love of people, seek the attention of people in their life. और वो अपने जीवन में लोगों का ध्यान अपनी तरह आकर्षित कर कर उनसे प्यार पाने की कोशिश करते हैं। And sometimes, so many times, we are carrying the same spirit of orphan in our own life even. और कई बार हम भी हमारे जीवन में उस अनाथ की जो आत्मा है उसको लेकर चलते हैं, Because we have not understood our Father's love, we have not accepted fully our Father's love in our life. क्योंकि हमने जो हमारे पिता का जो प्रेम है उसे पूरी तरीके से नहीं समझा है। And because of that, we have also developed a deep insecurity about our future in our life. और उसी के कारण हमारे अंदर भी हमारे भविष्य को लेकर एक असुरक्षा की भावना रहती है। Similar to that orphan, we sometimes behave that nobody loves me. We're trying to seek attention and love of others. और कई बार उस अनाथ की तरह ही हम भी दूसरों का ध्यान अपनी तरह आकर्षित करते हैं। And this is what God wants to speak to us, dear brothers and sisters. और वही जो है प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे बात करना चाहता है। That Holy Spirit has given the greatest promise through Jesus Christ that He is our helper. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमें दिया गया है। Are we living in constant fear and anxiety about tomorrow? और क्या हम निरंतर भविष्य के बारे में एक निरंतर डर और चिंता में जीते हैं? What will happen to my life, my family, my future? और मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे भविष्य का क्या होगा? What if my finances collapse? और क्या होगा अगर आर्थिक स्थिति खराब हो गई? I want to share this real incident when Brother Prabhu shared with me. और भाई प्रभु ने जो एक घटना मेरे साथ बांटी सच्ची, वो मैं आपके साथ बांटना This was चाहता a हूँ। real incident in one of the orphanage home that he was there. और एक अनाथालय में जिसको वो भाई जहाँ पर थे वहां पर ये हुआ। Among many children, there was one boy there. और उन सारे अनाथ बच्चों में एक बच्चा था। This in orphanage home, this boy had a very unique habit. और इस जो लड़का था उसकी एक बहुत ही अलग आदत थी। So every night before going to bed, this boy used to do something. और रोज सोने से पहले वो एक चीज करता था। Every night before going to sleep, secretly he used to hide 2 chapatis under his pillow. और सोने से पहले वो चुपके से 2 जो चपाती होती थी अपनी तकिया के नीचे छुपा देता था। Every day this boy is doing that, 2 chapatis under his pillow. Every night he is hiding. और हर रात वो 2 चपातियां अपनी तकिए के नीचे छुपाता था। And then
When this was caught, he was asked, "Why are you doing this?" और जब उसे पकड़ा गया, उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों करते हो? And very innocently, boy replied, "What if I don't get breakfast tomorrow morning?" और बड़ी मासूमियत से उस बच्चे ने कहा कि क्या होगा अगर सुबह मुझे नाश्ता नहीं मिला तो? Yes, brother was sharing that place was having safe place, abundance of meal, everything provided very richly there. और भाई बता रहे थे कि वो एक सुरक्षित स्थान है, वहां पर सब कुछ भरपूरी से उस बच्चे को दिया जाता But है। he was still fearing the next day provision in his life. फिर भी उसे कल के दिन क्या होगा उस बात की चिंता, उसका डर उसके मन में A था। deep insecurity and fear. What if I will hungry tomorrow? और उसके अंदर वो चिंता और डर था कि क्या होगा अगर कल मैं भूखा रह जाऊंगा तो? And this incident that brother shared really gripped my heart very deeply. और ये जो घटना भाई ने बांटी, सच में उसने मेरे हृदय में एक गहरी चोट डाली। How many us like today are like that boy today? और कितने हमें से लोग जो है उस लड़के की तरह है। We are in the Father's house in abundance of provision. We have heard, we know in Bible. और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, बाइबल में भी सुना है कि कैसे वो पिता के उस घर में भरपूरी है। But we are still hiding those chapatis under the pillow of fear and uncertainty in our life. और फिर भी उस डर और असुरक्षा में हम भी उस की तरह उन चपातियों को जैसे हमारी तकिया के नीचे छुपाते हैं। We sing God is my provider, और हम कहते हैं कि प्रभु तो मेरा प्रयोजन करने वाला है। but deep inside we have fear about tomorrow, that whether tomorrow I'll be able to provide for my family or not. और फिर भी हमारे भीतर ये डर होता है कि क्या प्रभु मेरे परिवार के लिए मुझे ये सब दे पाएगा? Few brothers and sisters have this habit of continuously, repeatedly getting panic. और बहुत सारे भाई बहनों में ये आदत होती है कि बार बार वो एकदम से चिंता या पैनिक में आ जाते हैं। Certain time it is uncertainty that they don't know even they are panicked about something. और कई बार होते हैं वो अनिश्चितता के बारे में उनको पता भी नहीं होता, फिर भी घबराते रहते What हैं। if I lose my job tomorrow? और क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो? What if I grow old? Who will take care of me? और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन मेरी देखभाल करेगा? You know, this Jesus came in this world to break this and freed us from this spirit of orphan in our life. और प्रभु यीशु मसीह हमारे इस संसार में आया हमारे जीवन में ताकि ये जो अनाथपन की आत्मा है उसको वो तोड़े। The promise we read in Romans 8:15. और रोमियो 8:15 में हम पढ़ते You can हैं, read in Hindi. Romans was 8 chapter verse 15. और रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Yes, brothers and sisters, we are not orphans in this world. और हाँ प्रिय भाई बहनों, हम इस संसार में अनाथ नहीं We हैं, are sons and daughter of Almighty God. और हम सर्व सामर्थी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। God knows and He knows to meet our needs, everyday needs. और प्रभु जानता है हमारी प्रतिदिन की हमारी जो जरूरतें हैं उनको वो पूरा करता है। Matthew 6, we see that 6:8 we said, your father knows what you need before you ask even. और मत्ती 6:8 में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानते हैं कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। Even God will take care of us even in our old age. और यहाँ तक कि हमारे बुढ़ापे में भी प्रभु हमारी मदद करेगा। When our hairs are growing gray. और जब हमारे बाल पकने लग जाते हैं। Isaiah 46:4, the very wonderful promise for all people who are aging. और यशाया 46:4 में बहुत ही अद्भुत वचन है उन लोगों के लिए जो जिनकी उम्र बढ़ रही है, जो बूढ़े हो रहे हैं। I'm saying physically they are aging, but in their heart they are still young. हाँ, वो शरीर में तो बूढ़े हो रहे हैं पर उनके हृदय में वो जवान है। This is wonderful promise. It says, और ये बहुत ही अद्भुत वचन है जो कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। the world only values which is new, which is young, which is smart. और ये जो संसार है उन्हीं की कीमत करता है, जो नया है, जो स्मार्ट है और जो यंग है। But still God values, even though we are young or aging, God still values and we are precious in His sight. और हम प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य, भले ही हम जवान हो या बूढ़े हो। Will I have enough pension in my life to take care of my old age? और क्या मेरे पास इतना पर्याप्त होगा कि मैं बुढ़ापे में अपना ध्यान रख सकूं? Will I be able to take care my health issues of tomorrow? और क्या कल जो मेरी अगर कुछ तबीयत खराब होती है उसका मैं ध्यान रख पाऊंगा? Maybe somewhere my loved ones will take care of me when I'm aging, when I'm getting old. और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हो सकता है मेरे प्रिय लोग मेरा ध्यान रखेंगे। Whether I don't know that, my aging needs will be met. और मैं नहीं जानता कि मेरे जो बुढ़ापे की जरूरतें हैं वो मिलेंगी, पूरी भी होंगी कि नहीं। But one insurance scheme that God has given in this Isaiah 46:4. पर जो है प्रभु ने हमें यशाया 46:4 में ये निश्चय दिया है That our all aging needs are insured in Father's
lifetime this promise. और प्रभु का जो ये हमारे जीवन भर के लिए वायदा है, हमारे बुढ़ापे में भी वो सारी जरूरतों को पूरा I करेगा। love this word in Message translation. It says, I'll keep on carrying you when you are old. और ये मैं दूसरे अनुवाद में ये लिखा है बहुत ही सुंदर कि मैं तुम्हें निरंतर लिए रहूंगा जब तुम बूढ़े भी हो जाओगे, I'll be there for you मैं तुम्हारे लिए वहां पर रहूंगा and bearing you when you are old. Bearing you when you are और old. मैं तुम्हें लिए चलूंगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो I भी। have done it and I will keep on doing that for you. और मैंने ऐसा किया है और मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। And ahead he says, I'll carry you on my back and saving you. और मैं तुम्हें जो मेरी पीठ पर लेकर चलूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। Brother and sister, we can stop living as orphan today. और हमें जो है अब एक अनाथ की तरह रहना बंद करना We होगा। are loved son and daughter of Almighty God, Almighty Father. और हम सर्वसम्मति परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। Today, Holy Spirit wants to remind us that who our God is. He's our Father. और प्रभु पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि कौन हमारा पिता है। Let our confidence be renewed that Father cares for my needs. और हमारा जो विश्वास है वो नया हो कि मेरा पिता मेरी जरूरतों का ध्यान रखता है। He is my Abba Father and He's controlling everything. और वो मेरा अब्बा मेरा पिता है और वो सारी बातों का नियंत्रण रखता है। And have you been in any train journey where you feel that you are going somewhere and the train has halted there for a longer और time? क्या कभी आपने कोई ट्रेन में यात्रा की है जहां पर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अचानक से वो ट्रेन जो है रुक जाती है There is no announcement, no explanation, but the train is halting there for a longer time. और कुछ भी बताया नहीं जाता है और अचानक जो है वो ट्रेन जो है वो रुक जाती है You are checking your watch, train is not moving, other trains nearby passing very speed और आप past. अपनी घड़ी को देख रहे हैं, आसपास की जो ट्रेन है वो तो स्पीड से जा रही हैं You wonder why my train is not moving. और आप आश्चर्य करते हैं कि क्यों मेरी ट्रेन नहीं जा रही है Why I'm still here, I'm not moving ahead. और क्यों मैं यहाँ पर हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। And I felt that frustration, that impatient attitude. और वो जो झुंझुलाहट है, वो जो इम्पेशेंट है, वो हम महसूस करते हैं। But something struck me when I was in this situation. और कुछ चीज मुझे मेरे मन में आई जब मैं ऐसी परिस्थिति में था। So when I'm struck like this, unknowingly in hidden way, there is something happening somewhere. और जब मैं इस तरह की परिस्थिति में हूँ तब गुप्त में कुछ हो रहा है। There is a central control room managing everything. और यहाँ पर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है जो सारी चीजों का नियंत्रण करता There है। are some experts there. They are tracking every train signals and their schedules. और कुछ जो है बहुत ही एक्सपर्ट हैं जो सारी चीजों का जो शेड्यूल है, सारा ट्रैक है, उसको ध्यान रख रहे हैं। Which train to halt, which train to allow, how to slow down, everything is decided from that control room. और किस ट्रेन को रुकना है, किसको जाने देना है, किसको ग्रीन सिग्नल दिखना है, सब कुछ वो कंट्रोल रूम से हो रहा है। Because that control room decides that, everything has to happen good way, a good safe journey they want to give us. क्योंकि वो कंट्रोल रूम डिसाइड कर रहा है कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए और सुरक्षित यात्रा होनी चाहिए। And our Father also has a control room in heaven who is ruling from the heaven everything concerning our life. और हमारा स्वर्गीय पिता, उसका भी एक कंट्रोल रूम है स्वर्ग में जो हमारे जीवन से जो भी सारी बातें हैं उनका वो नियंत्रण करता है। Psalms 103 verse 19 says, और भजन संहिता 103:19 में लिखा है, The Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. और उसमें लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज्य उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। He is Almighty God and he is sovereign God sitting on his throne. और वो जो है सर्व सामर्थी परमेश्वर है और वो उस गद्दी पर विराजमान है। We often don't understand why this delay, why sudden stop in my life. और आप नहीं समझ पाते क्योंकि ये देर है, क्योंकि ये रुक रही है, Why we wonder our journey is not moving quickly as others moving. और क्यों मेरी भी यात्रा जो दूसरों की तरह जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो पाती But है। God says, my thoughts and your thoughts are not similar. पर प्रभु कहता है कि जो मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं But है, his ways are higher than our ways. पर उसके जो मार्ग है हमारे मार्गों से बहुत ऊंचे हैं। He knows where to give a red signal because he knows what is danger ahead. और वो जानता है कि कब रेड जो सिग्नल है वो दिखाना है क्योंकि आगे जो है कुछ खतरा है। He has planned a safe route for our life. और उसने एक सुरक्षित मार्ग हमारे लिए तैयार किया है A plan, a route for our welfare and not calamity. और हमारी भलाई के लिए, हानि के लिए नहीं। And he is preparing everything concerning our life, brother and sister. और वो हमारे जीवन से संबंधित हर एक चीज को तैयार कर रहा है। And he is changing the track of our life. He is doing everything that is needed to be done from that control room. और वो हमारे जीवन के उस ट्रैक को बदल रहा है जहां भी जरूरत है उस कंट्रोल रूम से। I can just see outside the window.
मैं तो सिर्फ उस खिड़की से बाहर ही देख सकता हूँ, But God can see the entire map, the entire route where He is heading, where I have to stop, what is my destination. पर प्रभु जो है वो सारे मैप को देख सकता है, उस सारे रूट को देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। Psalms 37:23 says, और भजन संहिता 37:3-23 में लिखा है, the steps of godly men are ordered and directed by Lord, and He delights in His ways. भजन संहिता 37:23 में लिखा है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न रहता है। And this really gave me the encouragement and comfort that my God is in absolute control concerning my life. और ये जो है मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है और एक कॉन्फिडेंस देता है कि प्रभु जी ने मेरे जीवन का नियंत्रण ले रखा है। Let's be still and trust His control upon our life. और आइए कि हम शांत रहें और उसका जो नियंत्रण हमारे जीवन पर है उस पर भरोसा रखें। He is directing our life with very much precision. और बहुत ही हर एक सूक्ष्म चीज का वो जो है हमारी लाइफ को वो डायरेक्शन दे रहा है। Let's understand and remember, brother and sister, there is a heavenly control room, never sleeps, never slumber. और आइए हम इस बात को समझे कि एक स्वर्गीय कंट्रोल रूम है जहां पर कोई नहीं सोता है कभी भी। And the one operating there is not just the powerful, और जो वहां पर उसको चला रहा है वो ना केवल सामर्थी है, but He is loving, He is wise, He knows what we are going through. पर साथ में वो बहुत प्यार करता है और बहुत ही बुद्धिमान है वो। We often say God is in control. और हम बहुत बार कहते हैं कि हाँ प्रभु नियंत्रण में है। It's very comforting and encouraging word to listen. हाँ, ये सुनने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। But is that word has really synced in our heart that God is in control about my life? और क्या सच में ये जो बात है हमारे हृदयों में पूरी तरीके से भीतर आ गई है कि हाँ प्रभु का नियंत्रण है मेरे जीवन पर? Or just the repetitive word that we are hearing and then there is no actual meaning to our life? और या सिर्फ इन शब्दों का कोई मतलब नहीं और यूं ही हम इसको बार बार दोहराते रहते हैं। And how do I know that I have understood God is in control of my life? और कैसे मैं इस बात को समझूं कि हाँ प्रभु का जो नियंत्रण मेरे जीवन पर है। It determines that how I responding to all the fears and anxiety of my life. और ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह जो डर आते हैं, चिंताएं आती हैं, उनका मैं किस तरह प्रति उत्तर देता हूँ। This past week, this phrase was constantly in my heart that God is almighty and He is in control. और बार बार पिछले हफ्ते में ये बात मेरे मन में आ रही थी कि प्रभु सर्व सामर्थी है और वो सारी बात पर नियंत्रण रखता है। It's just not a reminder, but just it is a challenge for me that is it God is completely in control that I believe. और ये सिर्फ एक याद करने की चीज नहीं, पर बार बार मुझे चुनौती दे रहा था इस बात के लिए कि हाँ प्रभु सच में सब बातों पर नियंत्रण रखता है। Bible repeatedly says He is a sovereign God. He is a sovereign God in all the words. और बाइबल में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि वो जो है सर्व सामर्थी, सर्व सत्ता रखने वाला परमेश्वर I है। have not calculated, but one of the book I read that the sovereign God word comes almost around 300 times in the Bible. 300. और मैंने कहीं पे पढ़ा कि ये जो सर्व सामर्थी ऐसा जो ये शब्द है प्रभु के लिए, ये बाइबल में 300 बार दोहराया गया है। Who is all knowing, He is all powerful, all wise God. और वो सब कुछ जानता है, वो सामर्थी है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है Completely in control of our life. और वो पूरी रीति से हमारे जीवन का नियंत्रण रखता है। It's just not that He is solving some problems of our life, और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन की सिर्फ कुछ ही परेशानी को वो सॉल्व करेगा, but He knows what He is doing, His purpose, His intent, everything God knows. पर वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या उसके पीछे योजना है, इच्छा है, वो सब कुछ जानता है। If God says I'm in control, that means He has the ability, He has that power really. और अगर प्रभु कहता है कि मैं नियंत्रण रखता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके पास वो सामर्थ्य भी है उसका नियंत्रण करने की। Psalms 147:4 says और भजन संहिता 147:4 कहता है that God displays His sovereignty by creating this wonderful universe. कि प्रभु ने अपनी जो उस सामर्थ्य को दिखाया है उन सारे जो सुंदर ये संसार है और तारागण है उनको बनाकर। He says that He counts the number of the stars, He calls them all by their names. और वे तारों को गिनता है और उनमें से एक एक को नाम लेकर बुलाता है। This is our Almighty God. और ऐसा हमारा सर्वसामर्थी And do परमेश्वर we है। know? I did some Google on that. This galaxy. और मैंने ये जो गैलेक्सी है जो आकाश गंगा है उसके ऊपर मैंने गूगल किया। Do you know how big our sun is? क्या आप जानते हैं कि ये जो सूरज है वो कितना बड़ा है? You can fit 13 lakh Earth inside of this sun. और ये जो सूरज है उसके अंदर आप 13 लाख जो धरती है उसके अंदर वो आ सकती है। Our sun is not just one star, और हमारा जो सूरज है वो सिर्फ एक तारा नहीं है, but there are over 10 lakh crore stars in galaxy. पर 10 लाख करोड़ जो है उस आकाश या गैलेक्सी में है। This is from the NASA data. और ये नासा के डेटा से है। And such galaxies are 200 lakh crore. और कुछ जो गैलेक्सी वो 200 करोड़ है।
And maybe our calculator will not work here. और हमारा कैलकुलेटर भी वो काम नहीं Even करेगा, I don't know how many zeros it comes there. और मुझे भी नहीं पता कि कितने जीरो आएंगे। This is our sovereign God. और ये हमारा सर्व सामर्थ्य सर्व सत्ता रखने वाला प्रभु He है, names every stars. और वो हर एक तारे का नाम लेकर बुलाता He है, knows every star's names he knows that. और वो हर एक तारे को नाम लेकर जानता He knows है, exact how many numbers, how many galaxies, how many stars there are. और वो जानता है कि कितने गैलेक्सी कितने स्टार है, वो एक एक को जानता है। If he can hold the galaxies in his hand, he can hold our uncertain tomorrow also. और अगर वो उस गैलेक्सी को अपने हाथ में ले सकता है तो हमारा जो अनिश्चित कल है उसको भी वो ले सकता है अपने And I'm हाथ में। saying, Lord, how weak, how fragile I am. Lord, I'm not in control, but God is in control. और मैं कह रहा था कि प्रभु मैं कितना कमजोर और नाजुक हूँ प्रभु, पर आप उन सारी बातों पर नियंत्रण And रखते this हैं। is not just the sovereignty and vastness of God because He is Emmanuel. He came to earth because of you and me, the same God. और वो जो प्रभु है जिसने संसार को बनाया, वो इमैनुअल जो हमारे साथ रहता है, वो आपके और मेरे लिए संसार में आया। The galaxies are not random. और ये जो गैलेक्सी है वो यूं ही नहीं है, Even our lives are not random. और हमारा ये जो जीवन है ये भी रैंडम ऐसे ही We अचानक नहीं are है। all in God's hand. God has a specific plan and purpose for each one of us. और हम सबके लिए प्रभु का एक स्पेसिफिक जो योजना है, And He is not a distant God. He is so near to us. और वो जो परमेश्वर है कोई बहुत दूर नहीं है, पर वो तो बहुत नजदीक रहने वाला He है। is involved in our life. He is in complete, absolute control of our life. और वो जो है हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, वो पूरे नियंत्रण में है। I want to share few areas where God is in absolute control with you, और मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों को बांटना चाहता हूँ जहाँ प्रभु नियंत्रण रखता है, which I am learning and I've been challenged by those areas. और मैं जो सीख रहा हूँ जिससे मुझे चुनौती मिली। First area, God is in control of all our events. और सबसे पहला जो है वो है कि हमारे जीवन में होने वाली हर घटना का नियंत्रण प्रभु के पास है। We say God is in control, हम कहते हैं कि प्रभु नियंत्रण रखता है, but when we are facing sickness, our prayers are not answered. पर जब हम बीमारी का सामना करते हैं या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, Continuously facing injustice in some places and workplace, और हमारे काम की जगह पर जब हमारे साथ अन्याय होता है, then we wonder if God is in control, that why this all happening in my life. तब हमें आश्चर्य होता है कि क्या सच में प्रभु नियंत्रण रखता है, तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। Easy to believe someone in writing that God is sovereign God, हाँ, लिखा हुआ पढ़ के ये कहना कि हाँ प्रभु नियंत्रण में, ये बहुत आसान but it है। becomes very difficult when we are passing through tough, difficult times and we say that God is in control. पर जब हम मुश्किल हालात से जाते हैं तब ये कहना कि हाँ प्रभु नियंत्रण में है, वो मुश्किल है। We know the life of Joseph. He was betrayed by his brothers. और हम यूसुफ के जीवन को जानते हैं, कैसे उसके भाइयों के द्वारा ही उसको धोखा He दिया was गया। sold in slavery, falsely accused by Potiphar's wife, और उसके और पोतीफर की पत्नी के द्वारा उस पर झूठा दोष लगाया गया, thrown into prison there, forgotten by other people. और उसे जेल में डाल दिया गया, लोगों द्वारा उसको भुला दिया गया। From the human standpoint, his life was complete series of tragedies. और अगर हम मनुष्य के उससे दृष्टिकोण से देखें तो एक जैसे कि बहुत ही बुरा उसके जीवन में हुआ, इस तरीके का है। But years later, Joseph looks his brothers in their eyes and says, Genesis 50:20. पर बहुत सालों बाद यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर कहा इस बात को, जो This is- उत्पत्ति 50:20 में लिखा है। Very beautiful promise that we can claim that you intended to harm me, but God intended it for my good. उत्पत्ति 50:20 में लिखा है कि यद्यपि तुम लोगों ने तो मेरी बुराई करने का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी को मेरी भलाई करने का विचार किया। The word that stands out and encouraged me is word God intended. और जो इंग्लिश में गॉड इंटेंडेड मतलब प्रभु ने इस बात का विचार किया, He intended all our circumstances, the pit, the slavery, the accusations. और प्रभु ने हमारे जीवन में जो गड्ढा है, जो दोष लगाया जाने, उन सारी बातों को प्रभु ने ही ठहराया। God has intended for Joseph. प्रभु ने इस बात को ठहराया, विचार किया जो यूसुफ के लिए। And I imagine this, if Joseph would have been here, if he has to give one message to our church today, और मैं सोच रहा था कि अगर यूसुफ यहाँ पर होता और उसे हम सब के लिए अगर कुछ संदेश देना होता, he will say, brother and sister, वो कहता प्रिय भाई और बहनों, it's all God intended in your life. और वो कहता कि ये सब कुछ प्रभु ने आपके जीवन के लिए रखा है, विचार किया है। Whatever you are passing through, whether pit, slavery, prison in your life, और आपके जीवन में चाहे वो गड्ढा हो, चाहे वो बंधुआई हो, और चाहे बंदूकगृह, कुछ भी हो, constant rejection by people, you are misunderstood by people. और लगातार लोगों द्वारा नकारा जाना, गलत समझा जाना। And he will say that my teens and youthful years were lonely without friend. और मेरा जो टीन्स डे थे या मेरे जवानी के दिन थे, वो अकेले ही बिना दोस्तों के गए। But I understood and I want to encourage that God is in control. He intended everything for our life. पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ प्रभु ने विचार किया हमारे जीवन के लिए। And sovereign God is controlling every events of our life
with precision. और वो जो है हर एक उस डिटेल के साथ हमारे जीवन के हर एक बात का वो विचार कर रहा है। And the same principle we see even at the cross, we see when Jesus was crucified. और वही बात को हम देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। It seemed like devil was thinking that he won the battle, he got the victory और- by crucifying Jesus on the cross. और शैतान ऐसा सोच रहा होगा कि देखो मुझे तो जय मिली, मैंने तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया। A wonderful promise we read in Acts chapter 2 verse 23. और पर हम एक अद्भुत जो है वायदे को देखते हैं प्रेरितों के काम 2:23 में। On the day of Pentecost, Peter is saying this, Acts chapter 2 verse 23. This reminds us, Peter is saying very encouraging verse. और जो प्रेरितों के काम 2:23 में जो है पत्रस जो है हमें इस बात का याद दिलाता है और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला ये वचन This है। tremendously blessed me. Says, this Jesus was handed over to you by God's set determined plan and foreknowledge. और प्रेरितों के काम 2:23 में लिखा है कि उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। Oh, wait. It was not the Jewish, it was not the religious leader that crucified Jesus. और वो कहते हैं रुकिए, ये कोई रिलीजियस लीडर्स नहीं थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। It was not the Roman Empire. It was not even Satan who crucified Jesus. और ये कोई रोमन एम्पायर या शैतान नहीं था जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। This verse says 2:23. It was God's predetermined decision. Jesus was crucified. और पर ये वचन बताता है कि ये प्रभु की पहले से ठहराई हुई योजना थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना What है। an encouragement, comfort for all of us, dear brothers and sisters. और ये कितना ही हमें प्रोत्साहित करने वाला ये वचन हमारे लिए है। Even the darkest hour on that cross was orchestrated, designed, predetermined by Heavenly Father. और वो जो क्रूस पर जो अंधेरा जो छा गया था वो भी प्रभु के द्वारा ठहराया गया एक समय था। What are we passing today? We might be passing people, we might be facing for and fighting with circumstances. और हो सकता है कि हम भी ऐसे लोगों द्वारा ठहराए गए या अपोजिशन का हम सामना कर रहे हैं। There are brothers and sisters in our fellowship that facing opposition from their family, they are standing for the Lord and they are facing persecution and opposition. और हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, भाई बहन हैं जो उनके खुद के परिवार से उस विरोध को सताव को वो सह रहे हैं। Is that opposition in the office, any losses that we are bearing in our life? और हमारे ऑफिस में या घर पे कुछ इस तरह का क्रूस जो हम सह रहे हैं। Just know that God is in control of everything. बट इस बात को जाने कि प्रभु जो है सारी बातों पर नियंत्रण करता Today है। Joseph is encouraging us, God is intended everything. और आज जो है यूसुफ हमें कहता है कि प्रभु ने इस बात का विचार किया, ठहराया। And Peter is also encouraging, and it is all God's predetermined plan. और पत्रस भी कहता है कि ये प्रभु की पहले से ठहराई हुई योजना है It is in the foreknowledge of God. और ये प्रभु के पूर्व ज्ञान में था। Second thing I want to share is God is in control of time. और दूसरी बात मैं बांटना चाहता हूँ कि प्रभु जो हमारे जो समय है उसके नियंत्रण में है। Many of us, we don't struggle that God can do this or not. और कई बार हम इस बात में संघर्ष नहीं करते हैं कि प्रभु ये कर सकता है कि नहीं। We know that God can do this. We know that. हम जानते हैं कि हाँ प्रभु ये कर सकता है। But your and my struggle is when God will do it for me. पर आपका और मेरा संघर्ष ये है कि प्रभु कब उसको करेगा। Maybe delay in marriage. हो सकता है शादी में देरी है We are waiting for a child since years. और बहुत सालों से हम एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। Maybe a struggling career we have. और हमारे जो करियर है उसमें हमारा संघर्ष है। We feel like we are stuck up somewhere, we are not moving ahead. और हमें लगता है कि जैसे हम कहीं पर रुक गए, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। Yes, we say that God is never late. We understand that truth. हाँ, हम इस सच्चाई को जानते हैं कि प्रभु कभी भी लेट नहीं होता But है। I feel like whether I'm forgotten by God in my life, और कई बार हमें ऐसे लगता है कि क्या प्रभु ने मुझे भुला दिया है I'm left behind. और मैं पीछे छोड़ दिया गया हूँ। I'm anxious about things not working what I desired the और way. जिन बातों की मैं चाहता हूँ उन बातों को लेकर मैं बहुत ही एंशियस हो जाता हूँ। Some of the timelines in our life have already expired. और जो मेरा ठहराया हुआ समय था वो तो पहले ही कब का खत्म हो चुका है। You know the story of Lazarus that Jesus delayed 4 days there. और हम लाजर की कहानी को जानते हैं जहाँ प्रभु ने 4 दिन की देरी की। And he said that the Martha and Mary came to Jesus and they saying that the Lazarus you loved who is dead now. और मार्था और मेरी ने प्रभु से कहा कि लाजर जिससे आप प्रेम करते थे वो तो मर चुका है। Lord, if you had been here in John chapter 11, in other words, he would have not died. और वो कहते कि प्रभु अगर आप यहाँ पर होते तो वो नहीं मरता। In short, what they are trying to say, Lord, now it is too late for you to come. और अब वो इस तरीके से कह रहे हैं कि प्रभु अब तो बहुत लेट हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। And Jesus reminded and gave a wonderful response to her. पर प्रभु ने उन्हें बहुत ही एक अद्भुत प्रत्युत्तर दिया। Did I not tell you that if you believe only, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि अगर तुम केवल विश्वास करोगी you will see the glory of God in your life? तुम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखोगे।
And sometimes the delays and pause of our life, sometimes God wants to reveal some greater things than we have asked for. और कई बार ये जो देरी होती है प्रभु इसलिए करता है ताकि उसकी बड़ी महिमा को वो दिखा सके। Sometimes God wants to give us resurrection and we are just stuck up with our healing. और कई बार प्रभु हमें पुनरुत्थान देना चाहता है पर हम तो केवल उस चंगाई में ही रुक गए हैं। God has orchestrated something greater glory for us. और प्रभु ने हमारे लिए कुछ उस बड़ी महिमा की बातों को रखा है। Psalms 31:15 says, और भजन संहिता 51 में लिखा है, my times are in your hands. मेरा जो समय है वो तुम्हारे हाथ में है प्रभु। Let's not measure our life by others' timeline, what they are doing, what their life is going on. और हमारे जो जीवन को हम इस बात से ना नापे कि दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, उस बात से नहीं। God is not in hurry. प्रभु कोई जल्दी में नहीं है At the same time, He is never too late. और उसके साथ ही वो कभी भी लेट नहीं होता है। There is appointed season for every one of us, dear brothers and और sisters. हम सबके लिए एक ठहराया हुआ समय है He is building something eternal inside of us. और हमारे लिए कुछ वो अनंत बातों को बना रहा है। He says that 2 Peter 3:9, और दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, God is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with us. 2 पीटर 3:9. Second Peter 3:9. और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं कहता जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। He is encouraging. God is not slow concerning our life. और वो कहता है कि प्रभु जो हमारे जीवन के विषय में है वो देरी नहीं रखता है। As some understand, outside other people might understand that, but God is not slow for our life. He is on time. He is not slow, He is on time for our life. और वो जो है वो कभी भी देरी नहीं करता है, वो हमेशा समय पर ही है। And third area which I want to share is God is in control of my today and tomorrow. और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है कि प्रभु हमारा जो आज है और आने वाला कल उसके नियंत्रण में भी है। Always our concerns and anxieties are our daily needs, our health, our finances so many times. और हमारी चिंता जो कई बार होती है वो होती है कि हमारी जरूरतों के बारे में, हमारे फाइनेंसेस के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में। I shared about that boy that he was hiding that chapati in his pillow, below his pillow. और मैंने आपसे बांटा कि कैसे वो जो बच्चा था वो जो चपाती को अपनी तकिए के नीचे छिपाता था। He's in the good house but he's still afraid to trust. वो एक अच्छे घर में है फिर भी वो विश्वास करने से डरता है। Yes, we are also, dear brother and sister, are found in Father's house, but we are not able to trust God for our uncertainties. हाँ, हम भी प्रभु के घर में है फिर भी हम प्रभु को उस अनिश्चितता के लिए विश्वास नहीं कर पाते हैं। In Exodus we read that God gave manna to His people in और wilderness. हम निर्गमन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने इजराइलियों को वो मन्ना दिया That for each day they cannot gather that for the second day और except वो Sabbath. प्रतिदिन के लिए होता था, वो उसको अगले दिन के लिए नहीं रख सकते थे Because God wanted to teach them, you can trust me daily in your life. क्योंकि प्रभु उनको सिखाना चाहता था कि तुम्हें प्रतिदिन की जरूरत के लिए मुझ पर विश्वास करना है। Today the children's memory verse was wonderful. Do not worry about tomorrow. और आज जो बच्चों का जो वचन था बहुत अद्भुत था कि कल की तुम चिंता मत करो। Matthew 6:34. और मत्ती 6:34 We can turn there, Matthew 6:34. और हम मत्ती 6:34 निकाल सकते He हैं said, do not worry about tomorrow. कि कल की तुम चिंता मत करो। Each day has enough trouble of its own. और कल के लिए आज के लिए आज का ही दुख काफी है। Just remember, just note here, verse 34 is starting with so or therefore. So do not worry, therefore do not worry. और जो ये जो 6:34 वचन है वो इस तरीके से शुरू होता है, इसलिए। And it is connected with his previous verse, that is 33. और वो जो है जो 33 वचन है उससे जुड़ा हुआ And है। it says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. और वो कहता है कि पहले परमेश्वर के धर्म उसके राज्य की खोज करो। And our worries and our worries are correlated what we are seeking in our life. और हमारी जो चिंताएं हैं वो जुड़ी हुई उस बात से कि हम हमारे जीवन में किस बात की खोज कर रहे हैं। What are thoughts filled with today? और आज हमारे विचार किस बात से भरे हुए हैं। What is most important priority in our life today, brothers और and sisters? हमारे जीवन में आज हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी वो क्या है। Any ambition, any desire that we are giving more priority than God in our life? और क्या कोई ऐसी महत्वाकांक्षा, कोई ऐसी इच्छा जिसे हम प्रभु से ज्यादा बढ़कर दे रहे हैं। So what we are seeking and our worries have a correlation. तो जिस बात को हम ढूंढ रहे हैं और जो हमारी चिंता है उन दोनों में संबंध है।
what are we giving priority to the kingdom of God, the body of Christ in our life? और हम हमारे जीवन में जो प्रभु की देह है, जो उसकी कलीसिया है, उसको क्या स्थान दे रहे It's हैं? easy to say, seek ye first the kingdom of God in his righteousness. और ये कहना बहुत आसान है कि पहले प्रभु और उसके धर्म को पहला स्थान दो, उसकी खोज करो। A very small check we can do that we seek to be on time in our offices. और हम ये चेक कर सकते हैं कि हम हमारे ऑफिस में हमेशा देखते हैं कि हम टाइम पर पहुंचे। If any important travel we have to do, any 50,000 or maybe we have purchased a non-refundable air ticket. और कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी है और हमने पैसा वापस ना मिलने वाला ऐसी कोई एयर टिकट भी ले ली है। And we know this non-refundable, and we know that before time we will try to reach there. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम टाइम से पहले वहां पर पहुंच We जाएं। are so diligent in login in time for our offices. और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम बहुत ही अपने ऑफिस में टाइम से हम लोग लॉग इन कर दें, Because monthly we are getting a salary. क्योंकि हमें जो मंथली पैसा मिल रहा है उसके लिए। But do we have the same diligence, punctuality for the word of for the kingdom of God or the house of God? पर क्या वही जो डिलीजेंस है हमारे लिए, प्रभु के घर के लिए, प्रभु की देह के लिए भी है क्या? Maybe we can check. We are not here to judge और हम अपने आप को जांचें, हम यहाँ पे किसी का न्याय नहीं the करेंगे। kingdom of God. What are the price we are ready to pay for the God's kingdom? और प्रभु के राज्य के लिए हम क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार है? And maybe somewhere we try to ease ourselves and no, I will not go to the church or meeting attending. We have a casual attitude so many times. और कई बार हमारा जो हमारा व्यवहार होता है बहुत ही हल्का होता है कि हाँ मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा, मैं आराम करूंगा, इस तरीके Which का। way we are seeking the kingdom of God today, brothers and sisters? और हम कब प्रभु के उस राज्य को खोज रहे हैं? Is it that pearl that is valuable that we have found? Lord, this is valuable. I don't want to let it go. और क्या उस मोती की तरह हम उसको खोज रहे हैं कि प्रभु अब मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ? And 32 verse says that your heavenly Father already knows what your needs are. और 32 में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से ही जानते हैं कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। So 34 verses, do not worry about tomorrow. और जो 34 वचन कहता है कि कल की चिंता मत करो। 32 verse says your heavenly Father already knows what you need. और 32 वचन कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानते हैं कि तुम्हारी क्या जरूरत So है। between 32, 34, one sandwich verse, which is the remedy, which is 33. और 32 और 34 वचन के बीच में जो वचन है, जो उपाय है, वो ये है What are you seeking that is driving you? कि जिस बात की आप खोज करेंगे वही आपको चलाएगा। And when we seek the kingdom of God, the promise is all things shall be added unto you. और जब हम प्रभु के राज्य की खोज करेंगे तो वायदा है कि सारी बातें जो है हमें मिल जाएंगी। Yes, brother and sister, God is in control of our today and tomorrow. हाँ प्रिय भाई बहनों, प्रभु जो है हमारे आज और कल का नियंत्रण रखता है। We can enjoy the worry-free life when we seek the kingdom of God supremely in our life. और जब हम सबसे ज्यादा प्रभु के राज्य की खोज करेंगे तो हम एक चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। Last thing I want to share, the God is in control of our mistakes and failures. और तीसरी बात की अब प्रभु जो है हमारी जो गलतियां हुई है उनके भी नियंत्रण में है, If we repent. तभी जब हम पश्चाताप करें। So many of us are haunted by their past mistakes and even sins. और कई बार हम में से बहुत लोग जो है उनके जो पास्ट में जो पाप हुए, जो गलतियां, उसके द्वारा वो सताए जाते हैं। Some of the wrong decisions you made, some of the mistakes, some of the wasted years you had in your life. और बहुत जो गलत आपने जो फैसले लिए या जो पाप किए या जो समय बर्बाद And कर दिया। we might be thinking, because of my this mistakes, these wrong decisions, I have disqualified myself from the plan of God. और कई बार हमें लगता है कि जो मैंने गलत डिसीजन लिया, जो मैंने समय बर्बाद किया, उसके लिए अब मैं प्रभु के राज्य के योग्य नहीं हूँ। Maybe like that prodigal son that cries there in our heart. और हो सकता है उड़ाऊ पुत्र की तरह हमारे जीवन में भी, हृदय में भी वो पुकार है। I rejected my father's house food that was so lavishly was there. और मैंने तो मेरे पिता के घर में जो भरपूरी से खाना था उसको मैंने इनकार कर दिया। And I'm hungry inside. In this world, nothing is satisfying me because of my mistakes and past failures. और अब मैं इस संसार में हूँ और मेरी गलतियों के कारण मैं बहुत ही भूखा हूँ। I have sinned against my heavenly Father. और मैंने मेरे स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप किया है। I'm no longer to be called his son and daughter. और अब मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं उसका बेटा और बेटी कहलाऊं। But he decided to come back to father's house. पर उसने निश्चय किया कि मैं पिता के घर में वापस जाऊंगा। Peter denied 3 times Jesus. और जो पत्रस है उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। Massive failure. बहुत बड़ा फेलियर है वो। But Jesus restored him and said, tend my sheep, feed my sheep. और प्रभु ने उसको पुनर्स्थापित किया और उसने कहा कि मेरी भेड़ों को तू चरा। Jonah was running away from God's call. और योना जो था प्रभु की उस पुकार से भाग रहा था। But
After the repentance, God restores him for his work, his mission. और पर जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको फिर से पुनरुत्थान किए, पुनर्स्थापित किया उसके कार्य के लिए। Jonah 3:1, Jonah chapter 3 verse 1 says, और योना 3:1 कहता है, the word of the Lord came to Jonah a second time. और तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। Dear brother and sister, God is a God of second chance. और हमारा जो प्रभु है, दूसरी बार हमें वो चांस देने वाला You परमेश्वर know, है। your mistakes doesn't cancel God's sovereignty, God's control over our life. और आपकी जो गलतियां हैं, वो जो प्रभु की सर्वसत्ता या उसका नियंत्रण है, उसको कैंसिल नहीं कर देता है। Dear brothers and sisters, dear young brother and sister, if you repent thoroughly, और मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम सब पूरा रीति से पश्चाताप करें, God can redeem our lost years even. और प्रभु जो हमारे खोए हुए वर्ष है, उनको भी छुड़ा सकता है। He will still bring beauty for ashes. और वो उस जो राख है, उसमें से सुंदरता को भी ला Righteous सकता है। man may fall 7 times, और जो धर्मी व्यक्ति है, वो 7 बार भी गिरे, but he will rise again. वो फिर से खड़ा होगा। This is our promise. This is our hope, dear brothers and और sisters. यही हम प्रभु का वायदा, और ये हमारे लिए एक आशा है। No longer we need to live in the guilt and condemnation of our past mistakes and condemning ourselves. और हमें अब जरूरत नहीं कि हमारे पास्ट में जो हमसे गलतियां हुई हैं, पाप हुए, उसमें ही हम जीते रहें। Let us rise up and run to our Father. और आए हम उठे और प्रभु की ओर हम दौड़े। Let us repent from our sins. और आइए हम हमारे पापों से पश्चाताप करें। Let's not be changed with our past mistakes and our sins. और हमारी जो गलतियां, हमारी जो पाप हुए, उससे हम चेन की तरह जुड़े ना रहे। The good news is the freedom is available through Christ Jesus for all of us. और अच्छी खबर ये है कि वो जो आजादी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध है। Let us come back to Father. और आइए हम पिता के पास And लौटें। God is in control of your mistakes and even failures when you repent. और जब आप पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु आपकी उन गलतियों और उन पापों के भी नियंत्रण में है। Yes, brother and sister, God is in absolute control of our life. और इस बात को जानिए कि प्रभु जो है पूरी रीति से हमारे जीवन का नियंत्रण रखता है। But choice is yours. पर चुनाव आपका है। God will not force us to take the control of your life. प्रभु हम पर थोपेगा नहीं कि हाँ मैं तुम्हारे जीवन का नियंत्रण लूंगा। But are we willing to let go of the control and give it to God? Lord, let your control be there in my life. पर Lord. क्या हम इस बात के लिए तैयार है कि हाँ प्रभु कहें कि प्रभु मैं मेरे जीवन का नियंत्रण आपको देता हूँ। Yes, brothers and sisters, God is in control all of our circumstances. प्रभु हमारे जीवन की हर परिस्थिति के नियंत्रण में है। Second, God is in control of our time of our life. और प्रभु हमारे जीवन के उस समय के नियंत्रण में है। God is in control of our today and tomorrow, even though in our uncertainty. और हमारे अनिश्चितता में प्रभु हमारे आज और कल के भी नियंत्रण में है। And fourth, God is in control of our mistakes and failures when we repent. और जब हम पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु हमारी उन गलतियों के भी नियंत्रण में है। We might have lived like an orphan in our life. और हो सकता है कि हम अनाथ की तरह जिए The हों। orphan spirit that we carry inside of us. और हमारे भीतर जो अनाथपन की आत्मा को हम लेकर चलते Fearing हैं। about our future, doubting on God's care and love for our life. और हमारे भविष्य के बारे में, प्रभु की जो हमारी चिंता है, उसके बारे में हम डाउट करते Maybe हैं। seeking love and attention in wrong places. और वो जो प्यार है, वो जो अटेंशन है, हम गलत जगहों में ढूंढते हैं। That God has come to give us the spirit of sonship. पर प्रभु हमें उस लेपालकपन की आत्मा देने आया है। Holy Spirit wants to remind each one of us today. और आज पवित्र आत्मा हम सबको ये याद दिलाना Your चाहती है। heavenly Father is in absolute control concerning your life. और प्रभु जो है हमारे जीवन की हर एक बात के नियंत्रण को रखता है। One of the mark of spiritual maturity that we can see और एक जो चिन्ह है जो आत्मिक परिपक्वता का है, is like having a quite stronger confidence that God is in control of my life. और वो है इस बात का एक कॉन्फिडेंस होना कि प्रभु जो है मेरे जीवन का नियंत्रण रखता है। Even though when I don't understand why, what, when, how. और भले ही मैं इस बात को ना समझूं कि कब है, क्या है, क्यों है। May Lord help us to grip with this truth, brothers and sisters. और प्रभु हमारी मदद करे कि सच में इस सत्य के द्वारा हम जकड़े जाएं। He is in absolute control of our life. और वो पूरी रीति से हमारे जीवन का नियंत्रण रखने वाला Let है। us request Holy Spirit in our life today. और आइए हम पवित्र आत्मा से इस बात को मांगे। Let this truth become revelation in our heart. और ये जो सच्चाई है वो एक प्रकाशन हमारे जीवन में बने। Let us give complete control to God, और हम आइए पूरा नियंत्रण प्रभु को दें। knowing that the sovereign God cares for our life. और ये जानते हुए कि वो सर्व सामर्थी प्रभु हमारी चिंता करता है। May Lord help us. प्रभु हम सबकी मदद करें। Amen. आमीन।